So good morning everyone. Good morning, sir. I am again here as a some teacher or something like that because I came as a student here 6 months back and I learned so much in this institute. Now sir asked me to teach something to our students. So I decided that I should teach CPR training program to the student that are very helpful in day-to-day life because nowadays sudden cardiac deaths are so much common. It will happen anywhere like the shopping malls and gardens and marriage theaters everywhere. The sudden cardiac deaths are usually happening. So to prevent this sudden cardiac death, at least we have to have some knowledge about the cardiopulmonary resuscitation. So today we are discussing about the cardiopulmonary resuscitation. It's Cardiological Society of India, that is a CSI body, cardiology body in India that governs all the program that is initiated under the in the cardiology field to increase the patient awareness about the sudden cardiac death, to increase the about the preventive aspects. So this is a basic cardiopulmonary resuscitation awareness campaign and training program organized all over the India under the various banners. So these are the guys who died because of this cardiac arrest suddenly in the different scenario. Like Mr. Kannada superstar Puneet Rajkumar, he died in the gym after doing a vigorous exercise. The singer KK also died after doing a concert in Calcutta. And that Siddharth Shukla is also a Big Boss fame, that is a very big fame, who also died because of sudden cardiac death. So what will you learn today? That is the agenda of today's class. The cardiopulmonary respiratory physiology, something basic about the cardiorespiratory physiology, like how the blood pumps out from the blood and how it collects. Then cardiac arrest, there are what is the definition and identification, because there are multiple confusions about the cardiac arrest or heart attacks in the people. And then heart attack versus cardiac arrest, and then we will discuss about the basics of cardiopulmonary resuscitation and the method of how to demonstrate it, and then breathing pattern, and then or AED devices. Some learn about the some AED devices. There are some electrical system in the heart. This is a SA node, this is AV node, and there is a bundle of his, and this divide into the right and left bundle branches. So if the electrical impulse usually goes from here to here, then here to here, and then it is spread into the heart. If there is any problem in this electrical system, that lead to the some arrhythmias. Arrhythmia means abnormal heart rhythm. एबनॉर्मल हार्ट रिदम कोई भी होगी तो उसकी वजह से पेशेंट को लाइक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो जाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, या एट्रियल टेकीकार्डिया हो जाएगा. ये तरह तरह के एरिथमियाज होते हैं जिनकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है पेशेंट. इसमें क्या होता है, हार्ट रेट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट का हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप कर नहीं पाता और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाता. इस वजह से वो कुछ सेकंड्स में बेहोश हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ एरिथमिक डेथ, सडन कार्डियक डेथ. एंड what about the heart attack? Heart attack usually happen because there is a aorta and there are three arteries which are going to supply the heart, blood supply to the heart. If there is blockage in these three arteries anywhere, then that lead to the heart attack. So both are different things. The cardiac arrest and heart attack, they are both different things. So here there is a electrical system disorder. Here there is a disease of the plumbing system of the heart. Plumbing system means the vessels that supplies the blood to the heart. Just like अपने मकानों में होता है ना कि पाइप डाल दी, उनसे पानी आ रहा है जा रहा है, तो वो चौक हो गए तो बंद हो जाएगा. ऐसे कैसे क्या होगा कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होगा तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएगी. दैट कॉजेज द हार्ट अटैक. सडन कार्डियक डेथ होती है यूजुअली बिना कोई सिम्टम के आ जाती है, बिना कोई वार्निंग सिम्टम के. जैसे पेशेंट चलते चलते सडनली गिर गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ. बट हार्ट अटैक यूजुअली क्या होता है, सिम्टम्स के साथ आता है. जैसे पेशेंट को कोई घबराहट हो जाएगी, पेशेंट को चेस्ट पेन हो जाएगा, पेशेंट को पसीना हो जाएगा. तो हार्ट अटैक में हमेशा ये सिम्टम होंगे वार्निंग सिम्टम, चाहे वो पहले हो जाए 2 दिन पहले, 5 दिन पहले,
सडनली भी हो सकते हैं, बट वार्निंग सिम्टम डेफिनेट हो। बट सडन कार्डियक डेथ में क्या होगा, सडनली कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट। देन द हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग and there is no blood pump to the rest of the body that lead to the sudden collapse. But here the blood supply to the heart muscle is reduced or blocked. Sometime ऐसा होता है कि 100% बंद होती है, समटाइम केवल स्टेनोसिस होता है, 60%, 70%, 80% स्टेनोसिस होता है, तो उसकी वजह से पहले से ही वार्निंग सिम्टम आ जाते हैं। बट जैसे अपन ने देखा कि ये जो बड़े सेलिब्रिटीज है इनकी डेथ हुई, तो इनमें क्या हुआ कि इन्होंने या तो वाइग्रस एक्सरसाइज करी, कई बार अपन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे अपनी आदत नहीं है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फिर भी अपन लोग एकदम से बहुत ज्यादा एक्सर्शन करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यंग पेशेंटों में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं। जैसे कोई आर्टरी है तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बन जाता है। इसके कोलेस्ट्रॉल कंटेंट की वजह से जैसे ही शियर एंड स्ट्रेस फोर्स होगा, जैसे अपन ने एक्सर्शन किया तो ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए अपने को, हार्ट को वर्क ज्यादा करना पड़ता है, ब्लड फ्लो का प्रेशर बढ़ जाए, तो उस समय ये प्लाक रप्चर हो जाता है। जैसे ही प्लाक रप्चर होता है वहां पे खून का थक्का बन जाता है और उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और वो हार्ट अटैक में चेंज हो जाता है। इस हार्ट अटैक की वजह से जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होती है तो हार्ट की प्रॉपर्टी होती है सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो एरिथमियाज होते हैं, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, तो अरेस्टेड हार्ट हो जाता है। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सडन कार्डियक डेथ में क्या होगा, मतलब अरेस्ट में कि पेशेंट की पल्स नहीं आएगी, जैसे अपन पल्स चेक करेंगे तो पल्स नहीं आएगी, ब्रीदिंग नहीं आएगी, वो स्टॉप हो जाएगा सारा। बट हार्ट अटैक वाले पेशेंटों में यूजुअली बीपी मेंटेन रहता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाए। जो हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं 2 से 5% पेशेंट होते हैं जो कॉम्प्लिकेट होते हैं, जिनमें पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकती है या वो बेहोश हो जाएंगे, बीपी नहीं आएगा। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हार्ट अटैक के होते हैं वो स्टेबल होते हैं और उनमें बीपी मेंटेन रहता है, तो पल्स प्रेजेंट रहती है। सो इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो उसको पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोल देते हैं। So we already explained this person will lose the consciousness within 15 seconds and within 30 to 60 seconds he will stop breathing because there is no blood supply to the brain and the heart. If CPR is not performed within 10 minutes, then cardiac arrest, brain will get permanently damaged. ऐसे कैसे अपने हार्ट का सिस्टम होता है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो अपन बात करते हैं गोल्डन टाइम की, कि 90 मिनट्स का गोल्डन टाइम होता है, जो अपने पेपर्स में भी आता है, कई बार अपन न्यूज में भी पढ़ते हैं कि इस पीरियड में अपने को पेशेंट को इंटरवेंशन करना है ताकि पेशेंट के हार्ट को बचाए। तो एटलीस्ट वो जो 90 मिनट्स होते हैं वो एक क्रूशियल टाइम होता है। अगर उसके अंदर अपन हार्ट अटैक वाले मरीज की आर्टरी को खोल दें, ब्लड सप्लाई वापस से चालू कर दें, देन दैट मसल रिकवर एंड हार्ट की पंपिंग जो होती है कम हो जाती है, वो अपने आप रिकवर हो जाती है विद द टाइम। सो कार्डियक अरेस्ट, like it means that heart stops beating, suddenly stops beating and there is no heart. जैसे ही पेशेंट का हार्ट स्टॉप होता है, पेशेंट बिकम अनरेस्पॉन्सिव, he stops breathing and there is no pulse palpable. Such person will need immediate cardiopulmonary resuscitation for revival. If we will not do that CPR in that patient will not survive. So immediate CPR is needed within 10 minutes. So how to identify these patients? Like जैसे पेशेंट कोई कोलैप्स हुआ तो सबसे पहले उसको अपने को चेक करना है कि पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा। उसका तरीका है कि पेशेंट को आवाज लगाओ या कुछ उसको झकझोर दो, सिर पे मारो, कहीं भी टैप करो, तो उसको पता चल जाएगा कि रेस्पॉन्ड कर रहा है। इफ ही इज रेस्पॉन्डिंग देन इट्स ओके, बट इफ ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग देन चेक फॉर द ब्रीदिंग पैटर्न वेदर ही इज ब्रीदिंग और नॉट। उसके लिए अपन पेशेंट के पास जाके थोड़ा सा नाक से चेक कर सकते हैं कि जैसे हाथ लगा के देखते हैं अपन, या चेस्ट मूवमेंट देख सकते हैं कि ही इज ब्रीदिंग और नॉट। एंड पल्स चेक कर सकते हैं। पल्स के 2 तरह के होते हैं, कई भी चेक, जैसे कई लोगों को आता है कि रेडियल पल्स फील हो जाता है, किसी किसी को कैरोटिड्स होती है, तो अपने गर्दन में जो पल्स होती है वो कैरोटिड्स होती है। तो सबसे बेस्ट ये होता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम भी होता है तो एटलीस्ट उन पेशेंटों में ये कैरोटिड्स आती रहती है, एटलीस्ट 70-80 बीपी तक भी कैरोटिड्स आती रहती है। सो इफ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो अपन स्टार्ट CPR। सो वो असेसमेंट करना है, सो तीनों चीजों का अपने को, पल्स, ब्रीदिंग एंड रेस्पॉन्सिवनेस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। सो व्हाट इज CPR?
CPR is just a chest compression, pressure on the chest over the heart. This is used in an emergency. There is heart has stopped. So always used in emergency when it is required. How, why it is required? इससे क्या होगा, जैसे अपन हार्ट को पंप करते, जैसे हार्ट स्टॉप हो गया तो अपने को लगता है कि कुछ जा नहीं रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, उसकी वजह से क्या ब्लड पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर रहता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई कम हो जाती। बट जब हार्ट स्टॉप होता है तब भी थोड़ी देर के लिए उस ब्लड में ऑक्सीजन रहती, तो जो हार्ट के अंदर ब्लड है उसको पंप करने के लिए अपन सीपीआर करते ताकि वो ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर जाए और ब्रेन को रिवाइव रखे उसमें। सो सीपीआर में होता क्या है, there is usually enough oxygen still in the blood to keep the brain and other organs alive for a few minutes, and this blood will not be circulating unless someone does the CPR. इसीलिए जब CPR करते हैं, जैसे मेरे को भी पहले नहीं पता था, but sir when we do the CPR there is thrust over the pulse, over the radial or carotid. As soon as we compress the chest there is thrust over the pulse, so this blood comes from the heart suddenly with the every chest compression. And if it is delayed then the brain will irreversibly damage within 10 minutes. So brain tissue will damage within 10 minutes of if it is not revived, and patient lead to the hypoxic brain damage. Sometime after a prolonged CPR, जैसे कई पेशेंटों का होता है कि 20 मिनट तक 25 मिनट तक CPR हो जाता है, उन पेशेंटों में भी बाद में इंजरी बनी रहती, तो हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो जाता है सर उन पेशेंटों में. That lead to the permanent damage to the body and patient become bedridden like a vegetative state. Now how to assess? How to assess the patient? Identify the patient as soon as the patient collapses. Tap on the shoulders firmly, call 2-3 times to the victim with the same tone. Ask the patient, hello, how are you? आपका नाम क्या है? कुछ भी पूछ सकते हैं उससे, तो अपने को पता चल जाएगा कि पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या कर रहा है. उसके बाद अपन को पल्स चेक करनी है. दिस इज कैरोटिड पल्स. हियर इन द नेक रीजन देयर इज पल्सेशन. यू कैन आल्सो फील ऑल whether it is coming or not. And then for the respiration, goes near to the patient, near to the chest wall, listen for the breath sound or look for the chest movement. That is the identification idea about the patient responsiveness and the breathing pattern. If it is not there, then start CPR. So in CPR there is a cardiac compression is there. So how to do this cardiac compression? तो इसमें क्या होता है सर कि सबसे पहले अपने को पोजीशन करना होता है पेशेंट एज वेल एज आवर सेल्फ. सबसे पहले पेशेंट को फ्लैट पैनल पे लिटाना होता है. जैसे कि अगर हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल में तो क्या आजकल के बेड्स आते हैं सर, तो वो सीपीआर मोड पे होते हैं, तो उनको जैसे ही अपन सीपीआर मोड का बटन दबाते हैं बेड नीचे चला जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है. इफ इट इज नॉट देयर, इफ वी आर इन द ग्राउंड और शॉपिंग मॉल, then we have to kneel the patient, lie down on the flat surface, and we should make a knee chest position, just like here. This is the best position to do the CPR. Our elbow should be straight. There is no bend is there. So this is the position. Knee should be at the level of person. जैसे अपन CPR तो knee अपने को उस जमीन पे ही रखने हैं सर उसके साथ ही, and there is preferably kneel down beside the patient. Now using a proper technique, so CPR chest compression should be done over the sternum. Usually ऐसा होता है कि कई बार अपने को पता नहीं होता तो अपन रिब्स पे भी हाथ रख देते हैं कि जैसे ऐसे रिब्स को दबा दिया, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड बी ओवर द स्टर्नम, लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम. अब स्टर्नम को आइडेंटिफाई कैसे करना है अपने को, उसका बेस्ट तरीका होता है कि जो अपना स्टर्नल नोच होता है गर्दन के नीचे वाला, इससे नीचे जाते हैं अपन. ये पूरी जो बोन होती है ये स्टर्नम की होती है. जैसे इसमें देखेंगे अपन ने सेंटर में किया और इसको नीचे तक लाएंगे तो लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम में अपन पाल्पेट करते हैं, तो ये पता चल जाती है. फिर क्या करना होता है, अपने दोनों हैंड्स को अपन काम में लेते हैं. फर्स्ट पुट द योर हील ऑफ द हैंड over the lower part of the sternum, just like that. Then keep your another hand over here. You can make this fist or you can keep it like that, and then start CPR. And pressure should be from here, not from here.
अगर यहां से करेंगे तो ये क्या रिब्स तोड़ देगा ये। तो प्रेशर शुड बी फ्रॉम हियर जस्ट लाइक दैट, एंड मूवमेंट शुड बी एट द 90 डिग्री एंगल। नहीं ऐसा ऐसा नहीं होना, बस ऐसा होना, फ्रॉम हियर ओनली, एंड देयर इज नो बेंड इन द elbow, just like that. And rate of chest compression, it should be at least 100 times a minute, at least 100 times a minute. कई बार क्या होता है कि जो ट्रेंड नहीं होते हैं तो थक जल्दी जाते हैं सर इसमें, जैसे हमारी भी कहीं तो हम भी थक जाते हैं, तो 2 लोग होते हैं 3 लोग होते हैं, उनको रेस्क्यूअर बोलते हैं जो भी सीपीआर करते हैं। तो अगर वो थक गया तो तुरंत अपने को दूसरे आदमी को लगाना है उसके काम पे, तो वो चेंज ओवर कर लेगा, उससे अपने को आसान हो जाता है, फटीग नहीं होता। दूसरा पार्ट होता है सीपीआर का कि रेस्पिरेशन। सो हाउ टू ब्रीथ द पेशेंट, this was the place the heel of the supporting hand on the top of the working hand and extend interlock the finger, lift them to ensure, and chest compression should be continuous, there is no lift up of the hand, and there is equal pressure release, like first we will do the chest compression inside, then similar release, there is no detachment from this sternum. Yes, पावर मतलब कितनी पावर से? power, so power it should be at least, it should go at least 4 to 5 centimeter, 4 to 5 centimeter. We can't assess this how much it is going, so there are multiple indicators are there by which we can practice that how much pressure should be applied. So एक बॉक्स आता है, उसको प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, तो उसमें एक लाइट जलती है ना, जैसे ही सफिशिएंट प्रेशर जाएगा उसमें तो रेड लाइट जल जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए होता है कि अपने को अलग से प्रैक्टिस करनी होती है कि अपने को कितना प्रेशर देना होता है। जब आप मल्टीपल टाइम उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना प्रेशर देना होता है। सो देयर आर इंडिकेटर्स टू लर्न दिस हाउ टू डू द सीपीआर, हाउ मच प्रेशर शुड वी गिव, बट इन practically it is very impossible to assess how much deep we are going. So just do the CPR with your power over the sternum, not over the ribs, because many times ribs are fractured, then patient lead to the multiple complication of post CPR complication. There are various other complications we will discuss. So press down on the sternum to depress it at least 5 centimeter and not more than 6 centimeter. Then compression and release, this takes an equal amount of time, and the chest should be allowed to recoil to its normal position after each compression. So we already discussed this. The rate of the chest compression should be at least 100 per minute. Initially it was in the initial guideline, like when I was in my MD time, it was 60 or 70 chest compression per minute. But in the recent guideline, it is increased up to 100 chest compression, continuous chest compression without stopping. And about the breathing, and do not interrupt the chest compression for more than 10 seconds. Then airway. Simultaneously, one more, if there is a one more rescuer, then he will do the respiration, and one is continuously doing the chest compression. So what is the ratio between this chest compression and breathing? That is 30:2. Means 30 chest compression with the 2 respiration. So how to do this? We have to tilt the head, like most of the time जब भी पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न बंद होता है तो या तो कोई फॉरेन बॉडी होती है अंदर, तो जैसे अपन उसको असेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो या तो फॉरेन बॉडी निकाल देते हैं उसके मुंह से, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम टंग फॉल होता है, जैसे अपना टंग होता है ना सर, तो जब भी पेशेंट कोई कोलैप्स होता है तो टंग फॉल हो जाता है बैक साइड में। फॉरेन बॉडी कई बार क्या होता है, पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो, जैसे ट्रोमेटिक अनकॉन्शियसनेस होती है, तो डेंचर्स टूट गए उसके, या और भी कोई आर्टिफिशियल चीज हो जो उसके मुंह में हो, उसको निकालना होता है अपने को, है ना। अब क्या होता है, जैसे ही कोई पेशेंट आया अपने पास, तो उसका बेस्ट तरीका होता है टंग फॉल को रोकने का कि हेड को टिल्ट करते हैं अपन सबसे पहले ऊपर की साइड, पीछे की साइड में, और यहाँ से जो इसका जो होता है उसको अपलिफ्ट करते हैं मैडम, ऐसे इस तरीके से, जैसे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो जॉ का एलिवेशन हो जाएगा और टंग फॉल प्रिवेंट हो जाएगा, जिससे रेस्पिरेटरी एयरवे पेटेंट रह जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका होता है।
उसके बाद क्या करना होता है सर कि माउथ ब्रीदिंग करनी है। नाउअडेज जो नई गाइडलाइन आई है सर एससीसी एएचए की जो रिकमेंडेशन है उसमें कई लोग क्या होते हैं कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज इट इज समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पेशेंट दैट हाउ इट इज डाइड, व्हाट इज द कोज। समटाइम पॉइजनिंग भी होती है, समटाइम कोई बाइट एनिमल बाइट भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में खुद के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो वो अवॉइड करते हैं। कई लोग क्या करते हैं जैसे कोई ट्रेन पर्सन होता है उसके पास माउथ पीस अवेलेबल होता है तो उसको माउथ पीस को लगा के भी कर सकते हैं उस तरीके से। तो माउथ ब्रीदिंग के लिए अपने को टिल्ट करना है, उसका माउथ नाक बंद करनी है और मुंह को ओपन करके और ब्रीथ करना है सर उसके अंदर। एटलीस्ट 2 बार करना होता है 30 चेस्ट कंप्रेशन के बीच। तो या तो सेम अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो वो 30 चेस्ट कंप्रेशन देगा फिर 2 ब्रीथ देगा, और दूसरा रेस्क्यूअर है तो ये कंप्रेशन कंटिन्यू रहेंगे और वो हर 30 के बाद 2 रेस्पिरेटरी ब्रीथ दे देगा। दैट इज 30:2 रेशियो, दैट इज स्टैंडर्ड गाइडलाइन। So it is mouth to mouth breathing. Head tilt and chin lift. Pinch the soft part of the nose and close the index finger and thumb and hand on the forehead. Open his mouth a little but maintain the chin lift. Take a deep breath. Place your lips around his mouth and making sure that you have a good seal. इसके लिए माउथ पीस भी आते हैं सर जो फिट हो जाते हैं मुंह पर, जो अवेलेबल होते हैं, लाइक जो एम्बुलेंसेज होती है ईएमएस सर्विस वाली 108 एम्बुलेंस होती है उसके लिए। और 2 सेकंड्स के लिए ब्रीथ देना है सर, मेक इट चेस्ट राइज। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अपने को चेस्ट राइज से देख के करना है। सो दिस इज एच गाइड। यस, जैसे मतलब कोई माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहा है पर उसको मतलब कोई जैसे कोई मतलब डिजीज हो रही है या फिर कुछ भी उसकी तबीयत खराब है तो वो दे सकता है? दे सकता है ना, कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, क्योंकि पेशेंट तो जाने वाला है ना। एटलीस्ट यू कैन सेव इट, यू कैन सेव इट। सो अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो वो दे ही देता है सर बाद में। सो समथिंग अबाउट द एईडी, जस्ट लाइक पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ होता है तो आजकल क्या होता है कि सर देर आर मल्टीपल automatic external defibrillators are available that are placed at the shopping malls, in hotels, in gardens. They are placed to prevent the sudden cardiac death. So we can use this AED, but this AED there are 2 types of AED. One is automatically deliver the shock, and sometimes it is available which is shock is delivered by someone. So these are the AED that is available over the many places. Turn the AED on, इसमें एक switch button है sir, like this is the switch button by which we can turn on it. Then there are 2 pads, electrical pads are there. These pads should be placed over the chest wall, one on the left side of the ribs and one over the right side. But कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जगह नहीं होती, तो उनमें क्या करते हैं, एक तो स्टर्नम पे लगा देते हैं and on the same side over the back in front of this. So there are 2 pads. Then leads are connected, there is a point, and this automatic defibrillator automatically analyze the rhythm. There are 2 types of rhythm in the heart. One is shockable rhythm and one is non-shockable rhythm. Shockable rhythm means patient is having tachycardia. Tachycardia means like heart rate is around 400, 500, 300 like this. And non-shockable rhythm, that is asystole, means like there is a this is a normal ECG. Sometimes this rhythm become like that. This is a fibrillatory waves. This is a ventricular fibrillation. This time these devices analyze these rhythms and deliver the shock immediately. That will turn it to a normal sinus rhythm. This patient will survive after this. But sometimes the heart completely stop. That is asystole. These asystole rhythms are non-shockable rhythm. They are not recovered with this automatic defibrillator, because sometimes after in this fibrillatory rhythms, after giving a shock, these lines become changed like this, become stable.
मतलब फ्लैट लाइन. So there are shockable rhythm and non-shockable rhythm. So shockable rhythm, this AED is identified and deliver the shock and patient get revived. After giving this shock, then these AED are placed available in the cardiac ambulances, housing society, railway station, shopping mall. If you are not comfortable using the AED, then wait for an ambulance or emergency services to apply the AED. And till that time, you have to continue the CPR. Then when to stop the CPR? कब अपने को रोकना है कि ऐसा नहीं कि करे जा रहे करे पेशेंट को उठ गया तब भी करे जा रहे हैं उसको, ऐसा होता है कई बार. तो उसके लिए दो चीजें हैं. एक तो पेशेंट ब्रीथ करने लग जाए, पेशेंट कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सा भी मूवमेंट आ गया उसके अंदर, पेशेंट के अंदर कोलैप्स पड़ा हुआ, थोड़ा सा भी मूवमेंट आ गया, देन वी हैव टू स्टॉप द CPR एंड चेक फॉर द पल्स एंड ब्रीदिंग पैटर्न. इफ इट इज देयर, देन स्टॉप द CPR एंड वेट फॉर द emergency medical service to come. If it is not there, then continue CPR and wait for the emergency medical services when they come. So how long to do the CPR? The person start moving, and there is, if second person is available, you can switch if you get exhausted until the ambulance medical help arises. What? Usually it's a ambulance delay बहुत हो जाती है. Continue CPR. That is the only chance. Or keep the patient in your car or some vehicle and you take him to the hospital. That is the only criteria. Because in India it is very common that ambulances are late. And there are different medical emergency number like 108 in India. There is somewhere it is 911. There are different numbers. So these are the common points. Like as soon as the patient collapses, there is chances of possible cardiac arrest, and assess the responsiveness. Then look for the scene and safety. Scene and safety means sometimes the patient, multiple cases are of medico-legal cases are there. So उसमें उलझ जाते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी और ये होगा, तो उस चक्कर में तो वो भी अपने को ध्यान रखना होता है. कई बार पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, कोई मर्डर का केस होता है, तो उस कंडीशन में फिर अपन फंस जाते हैं उसमें, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है इसको करने से पहले. देन एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम. लाइक हेल्प के लिए कॉल करना, आसपास को बुला लो, तुरंत 108 पे फोन करो तो वो सर्विसेज आ जाती हैं. देन असेस फॉर द पेशेंट लाइक ब्रीदिंग पैटर्न, पल्स. If it is not there, then start chest compression and attach AED if available, because sometimes these AEDs are very useful nowadays. Many patients are survived because of these AEDs. Then continue CPR. सर इसमें ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति Yes, sir. सीपीआर दे रहा है और उसकी हेल्थ कंडीशंस भी ठीक नहीं है, तो उसी को कुछ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है sir, because CPR is a very exhausting process. Very exhausting process. So हो सकता है sir. कि वो खुद ही उसको So there are different causes of this, not because of the cardiac arrest, but there is like जब भी कोई अनफोर्सिन कंडीशंस देखते हैं, लाइक कई पेशेंट होते हैं जो किसी ने ब्लड देख लिया, जैसे किसी के इंजेक्शन लग रहा है उसको देख लेता है, वो भी गिर जाता है चक्कर खा के, तो उस समय क्या होता है, पेशेंट का एकदम से ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, वेगल टोन एक्टिवेट हो जाती है सर. तो वेगल टोन एक्टिवेट जब भी होगी तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पेशेंट की हार्ट रेट कम हो जाएगी और पेशेंट को खूब पसीना आएगा और वो गिर जाता है. तो उस समय क्या होता है, ब्लड सप्लाई अपना कम हो जाता है और पैरों में कूलिंग हो जाती है ब्लड की. तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है सर आजकल जो होता है मैक्सिमम टाइम, कि सडनली कोलैप्स हो गया पेशेंट, शादी ब्याह में बैठे हैं, खाना खा के उठा और एकदम से गिर गया, तो उस समय क्या करना होता है, पेशेंट को लिटाओ और पैर ऊपर कर दो बस उसके साथ. दैट इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड पेशेंट विल रिवाइव. These happens usually only for transient seconds, 4 seconds, 5 seconds. If you will do that leg raising, then patient become all right. But साथ में और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे अपन से पेशेंट से पूछ लेते हैं कोई पाल्पिटेशन हुआ, जैसे कई पेशेंट क्या होते हैं कि अरिथमिया जिनको होता है, मतलब टेकीकार्डिया जिनको होता है, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सर कि मेरे को ऐसा हो रहा है. जैसे ओपीडी में कोई पेशेंट आया, अपन उससे पूछते हैं कि कोई उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होती है सब बेसिकली, तो उससे पूछते हैं कि पाल्पिटेशन हुआ, कि धड़कन तो महसूस नहीं है, ऐसा तो नहीं लगा जैसे छाती पे घोड़े दौड़ गए हो. कई बार पेशेंट ऐसा बताते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि अपने को प्रायर कोई कंडीशनिंग है नहीं. कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली टेकीकार्डिया होता रहता है, स्टेबल टेकीकार्डिया होता है,
क्योंकि अलग अलग ऊपर के एट्रियल टेकिकार्डिया होते हैं, एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यूजुअली अनस्टेबल होते हैं और एट्रियल टेकिकार्डिया स्टेबल होता है, वो बीपी मेंटेन रहता है, तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सर यस, मैंने मेरे रिलेटिव के उसमें केस में सुना था कि जैसे फर्स्ट अटैक आया था, बच गए, सेकंड आया, बच गए, थर्ड आया। that is only a layman language. There is no definite criteria that how many times heart attack will come and after how many attacks he will die. That is not a criteria. He will die with a single attack or we will die with a multiple attacks after a multiple attacks. ऐसा कोई फंडा नहीं है सर। लाइक दो तरह की डेथ होती है, एक तो होती है आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, एक होता है इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। तो जो आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है, इफ सीपीआर गिवन विद इन टाइम देन अराउंड 20-30% आर डेथ प्रिवेंटेड, बट इन हॉस्पिटल सीपीआर अराउंड 60-70% डेथ्स आर प्रिवेंटेड विद द सीपीआर, नॉट 100। कारण क्या होता है कि वहाँ एक्सपर्ट्स हैं। सर टाइम लैप्स हो गया ना, और हॉस्पिटल में ड्रग्स भी अवेलेबल होती है, तो सीपीआर के टाइम में साथ में ड्रग्स भी दे देते हैं, लाइक एट्रोपिन, एड्रेनालिन, बीपी बढ़ाने के लिए ड्रग्स दे देते हैं, नोरेड है, डोपामिन है, जो भी। तो और दूसरा टाइम का लैप्स, थोड़ा ट्रेनिंग का, तो वो एक इश्यू होता है इसमें। तो इन हॉस्पिटल कार्डियक डेथ मैक्सिमम टाइम इट इज प्रिवेंटेड विद द जो सीपीआर है, ये कार्डियक अरेस्ट में भी काम होता है और हार्ट अटैक में भी काम होता है। कार्डियक अरेस्ट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। Heart attack can lead to the cardiac arrest because of some electrical changes in the biochemical changes in heart muscles. So there are like electrolyte imbalance, deficiency of magnesium, hypokalemia, hypomagnesemia that lead to some abnormal electrical activity that converted into a cardiac arrest. At that time, CPR is done. So cardiac arrest is a complication of heart attack, but heart attack is not a complication of cardiac arrest. अब क्या होता है, कई थोड़ा सा अपन कॉम्प्लिकेशन के बारे में होता है, तो जब भी सीपीआर करते हैं किसी पेशेंट का, तो प्रेशर का अपने को आइडिया नहीं होता सर कि कितना प्रेशर लगाते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं जिससे उसका स्टर्नम टूट जाता है या रिब्स टूट जाती हैं, बट दैट विल रिकवर स्पॉन्टेनियसली। कई बार क्या होता है, हार्ट की जो वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, मसल्स डैमेज हो जाती है, तो उनमें क्या हेमाटोमा बन जाते हैं सर, ब्लड इकट्ठा हो जाता है। कई बार लंग्स में ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसको हीमोथोरेक्स बोलते हैं। कई बार एयर इकट्ठी हो जाती है, उसको न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, फ्रैक्चर की वजह से, रिब फ्रैक्चर हो जाएगा, स्टर्नल फ्रैक्चर। कई बार पेट में ब्लड भर जाता है बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ वेसल्स, तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दूसरा एक होता है थंब वर्जन बोलते हैं सर, थंब वर्जन। तो कई बार क्या होता है, सीपीआर का अपने को पता नहीं था कि सीपीआर कैसे देना, तो उन पेशेंटों में पेशेंट जैसे सडनली कोलैप्स हुआ, तो 99% टाइम यही होता है कि पेशेंट को कोई ना कोई वेंट्रिकुलर एरिथमिया हुआ है जब भी कोलैप्स हो रहा है। तो उस कंडीशन में एक थंब वर्जन होता है, तो अपने पावर लगा के पूरा थंब देना और पेशेंट के चेस्ट पे इस तरीके से मारना, तो उससे भी कई बार वो पेशेंट रिकवर कर जाता है। जैसे अपन ने मूवीज में भी देखा है कई बार ऐसा कि वो पेशेंट सडनली जग जाता, जैसे अभी वो एक बगीरा आई थी सर, उसमें उसके ऊपर से कुछ गिरता तो एकदम से उठ जाता है। कई बार रोते मारती है क्या बस थंब वर्जन, इसको थंब वर्जन बोलते हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं, कई बार डिफिब्रिलेटर अवेलेबल नहीं होता ना, अभी जैसे हम लोग कई पेशेंट शिफ्ट होते रहते हैं ओटी से, तो ओटी से होते होते हमें लगता है कि पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यही करते हैं थंब, इसको थंब वर्जन बोलते हैं। पावर से ये वो स्टर्नम पे, स्टर्नम पे इसमें क्या होता है, एक प्रिकॉर्डियल एरिया होता है सर, ये जैसे जहां पे हार्ट ओवरलाइज द चेस्ट, जस्ट लाइक यहां से यहां तक हार्ट ओवरलाई करता है सर अपना, आधा स्टर्नम पे आता है और यहां से इस तरीके से आता है सर ये, तो इस एरिया में अपने को थंब देना होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। So that is, टूट जाती है ना, टूट जाती है, टूट जाती है, तो उसकी चिंता नहीं होती ना हमें, वो जान बच गई ना हमारे पेशेंट की, तो वो ठीक हो जाएगी बसलियत। उसके लिए बैंड लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना होता है। रिब फ्रैक्चर में कभी कुछ नहीं करना होता जब तक कि 7-8 रिब फ्रैक्चर नहीं हो जाए,
तो स्ट्रेपिंग कर देते हैं सिंपल तो जैसे उससे। अपन ने सीपीआर दिया फिर एक हफ्ता लगा और अगर पेशेंट टूट गया तो उसको कुछ खिलाना है नहीं खिलाना मतलब नहीं खिलाना, हॉस्पिटल पहुंचाना है उसको। पानी भी नहीं खिलाना नहीं नहीं पिलाना। क्या होता है पानी पिलाने से क्या होता है, पेशेंट को जब भी कोई पेशेंट बेहोश होता है उसको पानी नहीं पिलाना होता, अदरवाइज वो एस्पिरेट कर जाएगा लंग्स में, तो लंग्स टंग फॉल हो गई तो उसका इसोफेगस तो बंद हो जाता है, ट्रिके बंद हो, तो सारा जो भी फ्लूइड देंगे ना अपन वो लंग्स में चला जाता है। दैट विल क्रिएट अ मेनी प्रॉब्लम्स टू द पेशेंट, दैट विल गिव एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, दैट इज अ वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ दीज थिंग्स। पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाता है उसकी वजह से। तो सर चेंज कैसे करते हैं? पानी पिलाए, पानी हाँ, करते हैं ना, तो उस केस में तो फिर तो नहीं देना होता ना, वो नहीं देना होता। सर कई बार ऐसा भी होता है कि चक्कर आके गिर गए तो वो हार्ट पे की मसाज करते हैं उससे भी कोई So that will increase the blood flow towards the heart only. That is the basic funda about that. वो बेनिफिशियल है बेनिफिशियल होता है ना। आप किसी भी चीज को रब करोगे ना तो डायलेट होती है वेसल्स, तो वो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसका। लिम्ब एलिवेशन का भी यही है कि जैसे कोई पेशेंट गिरा उसका लिम्ब एलिवेट कर दो तो अपने आप पेशेंट का वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पेशेंट को आर हाइपरटेंशन मतलब जिनको की लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर, दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक। ये एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। जरूरी नहीं है कि सारे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंटों को हार्ट अटैक होगा, बट इट इंक्रीजेस द शियर स्ट्रेस इन द आर्टरीज। जैसे कोरोनरी आर्टरीज होती है तो इनमें क्या प्रेशर बढ़ाता है, कम ज्यादा प्रेशर होता रहता है, जिसकी वजह से इनकी जो एंडोथेलियम होती है उस पर चेंजेस आ जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक, तो वो प्लाक रप्चर होते हैं और थ्रोम्बस बन जाता है। यूजुअली जो प्लाक बनते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जब भी बच्चा पैदा होता है ना उसके 2 साल बाद से प्लाक बनने चालू हो जाते हैं, उसी समय से। तो प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट आता है कार्डियोलॉजी का वो बचपन से ही चालू होता है। अब आजकल क्या होता है कि डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई ना, तो डाइटरी हैबिट्स, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, दीज आर 4 मेजर फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लासिकल कन्वेंशनल फैक्टर है ना, लाइक हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इनके अलावा ये जो 4 फैक्टर होते हैं ये आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि कार्डियक डिजीज के लिए या किसी भी तरह की डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर हो। alcohol is also included. Alcohol is there, but moderation of alcohol is recommended. Everything should be in moderate quantity. Like आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना तो मॉडरेशन में ही करनी हो। ऐसा नहीं कि आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो सडनली वाइग्रस एक्सरसाइज करने लगे, दैट विल ऑल्सो लीड टू दिस प्लाक रप्चर एंड एमआई। जैसे इनके साथ हुआ, जो जिम में जाते हैं ना, कई लोगों को सुनते हैं अपन जिम में सडन कार्डियक डेथ हो गई, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं अचानक से, तो उससे प्लाक रप्चर होकर वो आर्टरी ब्लॉक होती है और सडनली डेथ हो जाती है, अटैक आया और अरिथमिया हुआ, डेथ हो गई। यंग पेशेंटों में ये ज्यादा होता है। ओल्ड एज में क्या होता है कि जैसे 3 कोरोनरी आर्टरीज मैंने बताई आपको, ये अपना हार्ट है, एओर्टा बड़ी आर्टरी जो होती है हार्ट की, इससे 3 कोरोनरी आर्टरी निकलती है। एक तो आरसी होती है, ये लेफ्ट मेन होती है, ये एलएडी होती है और ये एलसीएक्स होती है। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि इन आर्टरीज की कॉम्प्लायंस अच्छी हो जाती है। जैसे क्या होता है ना, अपन कहते हैं प्रैक्टिस करने से चीजें अच्छी होती जाती है, वैसे की वैसे क्या होता है, इनमें छोटे छोटे स्टेनोसिस होते हैं ओल्ड एज में, कई बार नहीं भी होते, छोटे छोटे स्टेनोसिस धीरे धीरे बनते हैं, तो वो क्या प्री कंडीशन हो जाती है उन चीजों के लिए। बट यंग एज में क्या होता है, इनमें कोई स्टेनोसिस नहीं होता और सडनली आप उसको स्ट्रेस दे रहे हो तो प्लाक रप्चर होकर एकदम से बंद हो जाती है। तो उनमें क्या रेट्रोग्रेड फीलिंग भी नहीं होती है, जैसे क्या होता है ये बंद हो गई तो इधर से ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी। तो यंग पेशेंटों में ऐसा नहीं होता, इसलिए वो सडन कार्डियक डेथ ज्यादा होती है यंग एमआईज में। और कारण यही है कि लाइफ स्टाइल, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज लाइफ स्टाइल। पहले उसको पता पड़ता होगा ना, जैसे कोई जिम में गया, ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो मतलब उसको एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ जाए। नहीं, सिम्टम आते हैं ना, सिम्टम आते हैं, उसको पसीना आएगा, घबराहट होगी। बट क्या होता है, जैसे किसी को जिम में गया, कोई दौड़ा, उसको पसीना आया, तो उसे लगता है कि मेरे तो दौड़ने की वजह से आ रहा है पसीना, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता ना। अब वो ट्रांजिएंट होता है थोड़ी देर के लिए, वो घर चला जाता है, फिर वहां जाके डेथ हो जाती है, कई बार वहीं भी हो जाती है, ऐसा रहता है। तो एज मैटर नहीं करती एज हाँ आ सकता है, बट छोटे बच्चों में यूजुअली क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक नहीं होता है, मतलब इन कोरोनरी आर्टरीज में स्टेनोसिस नहीं होता। देयर आर सम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज, लाइक इनकी कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, जैसे कि ये जो आर्टरी है ये इधर से निकल गई, अब इसका जो कोर्स होगा 2 बड़ी आर्टरीज के बीच में होगा, तो जब वो सडनली एग्जिट करता है 2 आर्टरी बीच में कंप्रेस हो जाती है वो आर्टरी, तो उसकी वजह से इस्कीमिया प्रोड्यूस हो जाता है और डेथ हो सकती है, या इनकी वजह से अरिथमियाज प्रोड्यूस हो जाते हैं,
तो बच्चों में ये कॉमन रहता है। और भी कई सारे कारण होते हैं, वो बहुत सारी डिटेल है। सर जैसा आपने बताया था कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच में एक नॉर्मल सिम्टम अपन देख सकते हैं कि उसमें हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। और जो वीगल वाला आपने बताया जैसे कोई बाथरूम जा रहा है, किसी भी जा रहा है, वो अचानक से बेहोश हो गया, तो अब उसके अंदर तो जैसे हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं, तो हम लोग डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे हार्ट अटैक है कि ये व्हीकल के थ्रू इसको है, तो उस कंडीशन में भी सीपीआर हम लोग दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं ना, बट सीपीआर देने के लिए सबसे पहले आपको असेस करना पड़ेगा पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न और पल्स कैसी है। इफ इट इज देयर पेशेंट ब्रीदिंग, देन यू कैन वेट। बट सम टाइम ब्रीदिंग पैटर्न में क्या होता है, एक तो होता है गैस्पिंग पैटर्न होता है, एक होता है नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जैसे इस तरीके से सांस ले रहा, और एक होता है गैस्पिंग पैटर्न जैसे इस तरह का सांस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में सीपीआर देना है। दैट इज नॉट ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो उस कंडीशन में सीपीआर देना है। यूजुअली अबाउट 30 years you can have a look about your cardiac status or everything like sugar, blood pressure, everything you should check about after the 30 years. Up to 30 years it is not recommended, but nowadays patients of hypertension like young hypertension are getting increased, like 18 year, 20 year, 22 year. That is mainly because of lifestyle only, sedentary lifestyle, because they are having a late night sleep, late morning awakenings, smoking pattern, stress pattern. There are a lot of stress nowadays because related to your life, related to your work, anything. So that is the most important part which I recognize nowadays. That is bad lifestyle only, bad lifestyle and bad dietary habits. That is the most important cause. स्ट्रेस कंट्रोल कर ले तो सब सही हो जाएगा। Yes sir, yes, definitely. तो हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे इसलिए आपको नहीं. But nowadays patients are getting increase and increase. That is the best part, sir. Like if you are improving your lifestyle, healthy lifestyle, you are following your healthy lifestyle, then ये तो नहीं पता सर अटैक आएगा नहीं आएगा, ये तो किसी को भी नहीं पता कौन मरेगा कौन जिएगा, बट ये है कि आपको अपना इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऑलवेज थिंक दैट आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। सर जैसे कोई बोलते हैं मतलब सर्दी में ज्यादा ठंडे पानी नहाने से मतलब नशा ब्लॉक होता है। हाँ ऐसा होता है। यूजुअली क्या होता है जिसकी आदत नहीं होती ना, जैसे कोई गर्म पानी से नहा रहा, उसको सडनली ठंडे पानी से आएगा तो क्या होता है सडनली वाजोस्पाज्म हो जाता है वेसल्स के अंदर, बहुत ज्यादा ठंड के अंदर। किसी किसी में टेंडेंसी होती है कि वाजोस्पाज्म होने की, लाइक फीमेल्स में ज्यादा होता है थोड़ा सा कॉमन, जैसे वो पानी में ठंडे पानी में हाथ डालती है तो उनके हाथ में दर्द होने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ रेनॉल्ड्स फिनोमेना, है ना, एक रेनॉल्ड्स फिनोमेना होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आती है सर मैडम ये। तो जैसे ही वो हाथ डालेंगी ना तो उनको वाजोस्पाज्म हो जाता है, और जैसे बाहर निकालेंगी दैट इज रिलीव स्पॉन्टेनियस। दैट इज कॉल्ड एज अ वाजोस्पास्टिक disorder that lead to the chest pain also, like vasospastic angina बोलते हैं उसको। तो फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा कॉमन होता है प्रेजमेटल एंजाइना, जिसमें अपन जैसे पेशेंट का चेस्ट पेन हुआ, अपन ने सारी जांचें करा ली, इको भी करा ली, वो भी अब नॉर्मल आ गई, और उसका ट्रोपोनिक कार्डियक एंजाइम्स भी करा ली, वो भी पॉजिटिव आ गए। उसके बावजूद भी एंजियोग्राफी उसकी नॉर्मल होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट वाजोस्पास्टिक एंजाइना, प्रिज्मेटल एंजाइना बोलते हैं। तो ऐसा होता है कई बार, उसको एक टेकोत्सुबो सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें अपाइकल बलूनिंग हो जाती है हार्ट के अंदर। देयर आर मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज देयर। सर जैसे कि मतलब बोलते हैं सर्दी में ज्यादा ठंडे पानी से मतलब हाथ धोने से सर्दी में आंखें सुन्न हो जाती है, तो वही है ना वाजोस्पाज्म। जैसे कोई हाथ सुनो, आपके वाजोस्पाज्म हो, पानी में डाला वाजोस्पाज्म हो, तो ब्लड सप्लाई कम होगा। तो जैसे ब्लड सप्लाई कम होगी ना तो पेशेंट का हाथ सफेद हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा उसको। बट जैसे आप बाहर निकालेंगे वापस से ब्लड सप्लाई चालू हुई और वो वापस लाल हो जाएगा और सुनपन खत्म हो जाएगा उसमें। कई लोगों को देख चुका हूँ ना मैं, ऐसा मतलब इतने ओपीडी देखता हूँ, सबका देखता हूँ कि कौन क्या है क्या नहीं है, बट वो कुछ इवन आई एम आस्किंग टू एवरी पेशेंट दैट हाउ मच स्टेप्स यू आर वॉकिंग डेली। वो कहता है साहब 10,000 15,000 स्टेप चला है। अब ये क्या स्टेप काउंटर जो आ गया ना घड़ी में सर, तो ये वो डेंजरस हो गए लोगों के लिए। लोगों को लगता है कि हम तो 10,000 कदम चल लिए, बाकी उसको पता नहीं है कि मैं काम वर्क रिलेटेड चलाऊं सारा का सारा। उसको यही पता नहीं कि मैं सुबह कितना चलाऊं, तो सुबह चलते ही नहीं है। उनको लगता है कि मेरे तो हो गए 10,000 स्टेप पूरे। तो ये मिथ आ गया है बेसिकली कि स्टेप काउंटर हमारे पूरे हो गए बस, वो कुछ भी काउंट कर लेता है सर। तो उनको लगता है कि हो गए हमारे 10,000 स्टेप्स पूरे।
इसमें एक फैक्टर आप बताइएगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप देखा था पॉडकास्ट में देखा था कि बैलून फुलाना चाहिए अगर आपकी एज ज्यादा है तो हार्ट की एक्सरसाइज के लिए। किसी भी एज के लिए कर सकते हो, है ना, किसी भी एज के लिए. दीज आर बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओनली. लाइक अनुलोम विलोम करते हैं, दैट इज ऑल्सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो बलून फुलाना इज ऑल्सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ये मतलब वर्कफुल है। हाँ, क्यों नहीं, वर्कफुल है. मतलब उसको करना ही चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो ना, तो भी सफिशिएंट है दिन भर के लिए सर, फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर लंग्स. जैसे बोलते हैं खाना खाने के बाद सो जाने के बाद फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हाँ, पड़ता है. इसीलिए खाना खाने के बाद कभी नहीं चलना चाहिए. एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर कभी नहीं चलना चाहिए. वेट करो, और जब भी खाना खाने के बाद अगर किसी का वॉक करने का मन भी है ना, तो 1 घंटा वेट करके, ऐसा नहीं कि ब्रिस्क वॉक करने लग गए, बिल्कुल धीरे धीरे चलना, टहलना है बस, वो टहलना है. ब्रिस्क वॉक हमेशा खाली पेट करना सुबह सुबह. और अगर शाम को भी करना है तो खाना खाने से पहले. हार्ट के ऊपर थोड़ा सा जोर कम पड़ता है, एक आम भाषा में यूं कह सकते हैं अपन, क्योंकि लेफ्ट लेग आइडियली तो सीधा सोना चाहिए, है ना. और कोई भी पोजीशन होगी, चाहे आप प्रोन सो रहे हैं, चाहे राइट लेटरल सो रहे हैं, लेफ्ट लेटरल सो रहे हैं, तो इनमें क्या टेकीकार्डिया हो जाता है पेशेंट को. टेकीकार्डिया होना एक अच्छी बात नहीं होती. जैसे कई लोग होते हैं ना, पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे साहब हार्ट रेट ज्यादा रहती है, 100 से ज्यादा रहती है. दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. इट शुड बी बिटवीन 60 to 80. कम रह जाए, 50 रह जाए, 55 रह जाए, दैट इज ओके, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए 100 से ज्यादा. इट शुड बी कंट्रोल. दैट इज, क्योंकि एक टेकीकार्डिया होना अपने आप में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए स्ट्रेस फैक्टर होता है, that will create a shear and stress forces over this coronary. Any type of vessel like brain, limbs, कहीं की भी vessels हो, उनके लिए एक shear stress होता है सर. ये तो atherosclerosis प्रोड्यूस करता है. तो tachycardia is not good for health. Okay sir. So make a fist over the sternum. Keep your heel pad of the head over the sternum, lower part of the sternum, and put another hand over it and compress it with a continuous pressure. Equal amount of pressure should be there, and there is no bend in the elbow, just like that. So there is no gap, no gap should be there in the chest compression, and every time you don't lift your hand from the sternum. So thank you very much.